ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਚਾਹਲ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਚਾਹਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਖੀ ਚਾਹਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਈਵਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹੈਗੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹਦੀ ਟੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ % ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ % ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਮ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਆਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ। ਚਾਹਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸਮਾਚਾਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੂਤਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100% ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਠੋਸ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਵਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ मौत जड़ी हो गई। अनफॉर्चुनेटली पीछे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं था। जो कनिष्का कांड हुआ वो भी ऐसी डिस्कशन से, ऐसी बातों से, ऐसी धमकियों से शुरू हुआ था ना, और इवेंचुअली उन लोगों ने उसको वो अंजाम दे दिया था। कितने लोगों की डेथ हुई। इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। और ऐसी आपकी हिस्ट्री में, और अभी तो वो लोग जिंदा हैं, अभी बहुत लोग जिंदा हैं जिन लोगों ने किया था, तो उनको लोग देखते हैं। और आजकल जैसे मिस्टर पन्नू जैसे लोग कोई ऐसी बदतमीजी की बात करते हैं, इट इज ए सीरियस कंसर्न, इट्स ए सीरियस मैटर। एंड मैं तो आई रोट ए ईमेल एंड a message to Department of Justice, to the FBI, to the concerning authority कि this is nonsense, this needs to be stopped। क्योंकि उसका ऐसा नहीं भी उसको सारी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी को, जो सिख कम्युनिटी की हैसियत है, उसको भी बहुत ज़्यादा चोट पहुंचेगी इन द लॉन्ग रन। क्योंकि अगर ऐसी बात करनी, ऐसी बात कौन करते थे? पहले सोचते थे भी वो कोई तालिबान के लोग करते थे, जो इस्लामिक जो टेररिस्ट हैं, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है अलकायदा वाले हैं, वो ऐसी धमकियाँ वो देते थे। और पन्नू साहब इंटरेस्टिंगली अमेरिका में बैठ कर जी ऐसी धमकियाँ दे रहे हैं। तो ये थंबनेल मेरे पास आज तक जो है संभाल के मैंने रखा हुआ है। और आज मैंने बात मैं इसलिए कर रही हूँ सुखी जी की कि
2-3 दिन पहले की न्यूज है, और जो कि यकीनन आप लोगों में से भी बहुत से लोगों ने देखी, और आप में से बहुत से लोगों ने यकीनन ये न्यूज देखी होगी कि सुखी चंद जी जो है वो अब हमें नहीं रहे, और हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हुई है। बहरहाल ये न्यूज जो है मैंने सोशल मीडिया पर देखी। हमारे जो हमारे साथ शो में भी आते हैं, हमारे दोस्त भी हैं, वैभव सिंह, उन्होंने भी ये खबर लगाई, यानी कि इस खबर के ऊपर उन्होंने अपना बल्कि एक फोटो भी शेयर किया सुखी जी के साथ। उसके अलावा जो है वो कर्नल दानवीर सिंह भी जो है वो उन्होंने भी इस खबर के ऊपर अपना कमेंट लिखा, और तमाम ही लोग, कई दूसरे मीडिया के लोग जिसमें के आदित्य राजकोल भी हैं और कई दूसरे लोग, जिन्होंने बहुत हैरत का भी इजहार किया, और बहुत लोग एकदम शॉक हो गए सुनकर कि सुखी जी जो हैं वो अब हमें नहीं ये रहे। लोग कहेंगे खालिस्तान की मिस्टर पन्नू बात करेगा, लेकिन इनकी ये हिम्मत नहीं है, कभी भी इनकी ये हिम्मत नहीं है भी जो लाहौर का इलाका था, जो महाराजा रणजीत सिंह का इलाका था, क्योंकि बेसिकली तो खालिस्तान की राजधानी है, वो तो लाहौर होनी चाहिए, उसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि माई बाप रावलपिंडी में बैठे हैं और उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकेगा। उनको कोई, अगर वो कहेंगे तो कल को फिर और कोई परेशानी होगी। इसीलिए ये जो झंझट है, जो दुकानदारी है, जो हमारे सिखों की, गुरुओं की, पीरों की, फकीरों की इतनी मेहनत, इतनी कुर्बानियाँ करके सिख कम्युनिटी की इतनी बड़ी हैसियत है। आई एम ए सिख, ठीक है, आई एम प्राउड टू बी सिख। आप हिंदू हो, आप जाट हो, ठीक है ना। अगर हमारी हिस्ट्री में तो कोई, आप थोड़ा पीछे चले जाओ, आप देखोगे शायद हमारा रिलेशन, हम एक ही जगह से आए हुए, ठीक है ना। लेकिन नाउ आई एम ए सिख, आई एम प्राउड टू बी सिख। लेकिन हमारा तुम्हारा जो रिलेशन है, इनसेपरेबल जो रिलेशनशिप है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन ये शक्तियां हमेशा तोड़ने की कोशिश करेंगी, और ये तोड़ने की कोशिश कर रही हैं और लगातार कर रही हैं। इसकी वजह से जो 100 साल से ज़्यादा डायस्पोरा में, अमेरिका, कनाडा में लोगों ने मेहनत करके एक हमारा एक क्रेडिबिलिटी बिल्डअप की थी, हमारी रिस्पेक्ट थी सिखों की, जिनका 1.25 लाख में एक ही पता चल जाता है भी सिख आ रहा है, उसको बहुत बड़ा थ्रेट है। जैसा कि लोग सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं शायद किसी ने कुछ किया है जिसकी वजह से सुखी जी जो हैं वो अब हमें नहीं रहे, तो मैं जरूर चाहूंगी कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर किसी ने ऐसा किया है तो डेफिनेटली उसको सजा दी जाए। बाकी तो आप लोग जानते ही हैं कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, वहां पर जिस तरह से खालिस्तान को सपोर्ट किया जाता है, गवर्नमेंट लेवल तक पर उन लोगों को प्रोटेस्ट करने का या फिर पॉलिटिकल रैलीज और नारे लगाने की और इस किस्म की इजाजत दी जाती है, कि जिसमें वो ना सिर्फ ये कि इंडियन पार्लियामेंट को गिरा देने की बात करते हैं, इंडियन पार्लियामेंट को अटैक करने की बात करते हैं, कभी इंडियन एयरलाइन को अटैक करने की बात करते हैं, और बिल्कुल रोका टोका नहीं जाता। तो उसको देखते हुए मुझे, अगर कोई निकल आया वहां से जिसने के सुखी जी के साथ इस तरह से किया है कि उनकी जान गई है, तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी, क्योंकि वो लोग जिस तरह से बात करते हैं, खालिस्तान सपोर्टर्स जिस तरह से कनाडा में, अमेरिका में खड़े होकर बात करते हैं, जिस तरह से नारे लगाते हैं भारत की गवर्नमेंट के खिलाफ, भारत की एयरलाइंस के खिलाफ, या किसी भी पार्लियामेंट पे अटैक की जो बातें करते हैं, मैं मानती हूँ कई लोगों को हो सकता है अपनी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम रहती हो, हम भी यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं अगर कुछ गलत होता है, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि उस पर अटैक कर दिया जाएगा। और एक ये जो इंडिया से सेपरेटिस्ट होने के हवाले से जो बातें की जाती हैं, और पाकिस्तान से जो अनफॉर्चुनेटली ये खालिस्तान के लोगों को सपोर्ट किया जाता है, वो भी बहुत ही अफसोसनाक है। पाकिस्तान को बिल्कुल खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए और अपने आप को इन चीजों से अलग रखना चाहिए। क्या वजह है कि हम हर गलत चीज में अपनी टांग अड़ाते हैं?